Introduction to Graphs and Graph Traversal Algorithm. This is lecture number 20 of Design and Analysis of Algorithm. What is difference between trees and graph? There is a difference between trees and graph is that in graph, both are non-linear data structures. But in a tree, you have parent and then child relationship throughout the nodes. And here we have the point which is called the edges, and edges and nodes are also in trees. But as for in graphs, we also have the nodes and edges, combination of edges and nodes in graphs and trees both. But in graphs we have no limit of edges, how many edge can be come from one node to another node. They can be as many as we can. Again, difference is also here. In trees there are rules dictating the connection between nodes, and n nodes, if in a tree there are n nodes, there must be n minus 1 edges. There is no other more than n minus 1 edges between nodes of tree. All nodes must be reachable from root node, and at least one possible path exists from root to node. These are the major differences in trees, while in graphs there are no rules. A set of trees and edges connect a node in any possible way, because we have no limit in that. In this slide here we see that there is a in trees we have n minus 1 edges, because every hair part is connected with two nodes, two sub nodes, और you can say that कि एक नोड के दो चाइल्ड हैं, और इसी तरह से हायरार्की जो है वो ट्री में डेवलप होती चली जा रही है. और उनके दरमियान अगर आप देखें कि अगर सिर्फ इतने एरिया को देखें तो ये हमारे पास 4 नोड्स हैं. तो 4 नोड्स को हमें कनेक्ट करने के लिए 3 एजेस चाहिए, यानी कितने n minus 1. So always be this property is satisfied in tree. जितने नोड्स होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर हमारे पास यहाँ पे 9 नोड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. ठीक है. So 9 minus 1 is 8. So here the edges must be 8. तो हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. So there will be 8 edges to connect these 9 nodes in trees. While in graph we have no limit. We can have as many edges as we can. We have the cell cycle also. We also have edge from here to here, or some here to here. So it's no limit of edges, how many edges could be coming from one graph to another node in a graph. So we call the definition of graph. Graph is a collection of objects and entities called nodes or vertices connected to each other through edges. It can be applied in a wide range of applications in computer science. They are computer networks, internet is World Wide Web, and many applications like you are now is using Cream. They are all using, behind this is the concept of graph. Graph is an ordered pair of set V of vertices and a set of E of edges. This is the definition. G equals to V comma E. कि ग्राफ के अंदर बहुत से वर्टिसेस होते हैं, वर्टिसेस का एक सेट होता है और एक एजेस का सेट होता है, उसको कंबाइन करके हमारे पास ग्राफ जो होता है उसकी डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट होती है. इन दिस स्लाइड वी आर शोइंग द वर्टिसेस ऑफ नोड्स इन अ ग्राफ. यहाँ देखें, ये सारे वर्टिसेस को हमने यहाँ एलैबोरेट करके मुख्तलिफ इनको हमने नेम दे दिया है, V1 V2 V3 4 5 6 7 8. सो इन सब का जो ये सेट है, और ये कैपिटल V से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ग्राफ के अंदर जो वर्टिसेस का सेट होता है उसमें मल्टीपल
नोड्स होती हैं। जैसे इस ग्राफ में V1 से V8 तक यानी 8 नोड्स हैं। अब हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हाउ डू आई रिप्रेजेंट एन एज? एज कैन बी डायरेक्टेड like this. In first picture we see that के U से V दो वर्टिसेस के दरमियान जो आपका पास एज है वो डायरेक्टेड है, ये वन डायरेक्शनल के लिए यानी डायरेक्टेड में आता है। दूसरा अनडायरेक्टेड है यानी उनके दरमियान कोई आपने एरो नहीं लगाया, इट्स मीन कि दे आर बाई डायरेक्शनल, और उसको अनडायरेक्टिव कहेंगे। दोनों तरह के एजेस पॉसिबल हैं इन ग्राफ्स, ठीक है। तो ये हमारे पास जो वर्टिसेस थे V1 से लेकर V8, तो उसके दरमियान जो एजेस के सेट बने वो हमारे पास V1, V2, V1, V3, V1, V4। जैसे यहाँ पे इन तीन एज में, क्योंकि ग्राफ के अंदर तीन जो है V1 से तीन एजेस निकल रहे थे, 2 पे भी जा रहा था, 3 पे भी और 4 पे भी। सो हमने इसको V1 के साथ इस तरह से लिख लिया क्योंकि वो बाई डायरेक्शनल थे। इसी तरह V2 का ये सेट आया V2, 6, V3, V7, V4, V8 and V7, V8, V5, V8 and V6, V8। यानी ये सारे वर्टिसेस का हमने बना दिया है कि वो कितने एजेस के साथ कनेक्ट हैं, और इसको अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 एजेस के हमने यहाँ पे सबसेट बनाया है जो कि 8 वर्टिसेस को इन 10 एजेस ने जोड़ा हुआ है। इस स्लाइड में हम टाइप ऑफ ग्राफ शो कर रहे हैं। ग्राफ कैन बी डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड। अ ग्राफ विद ऑल डायरेक्टेड एजेस इज कॉल्ड एज डायरेक्टेड ग्राफ और डायग्राफ कहलाता है, जो कि हमारे पास ये फिगर 1 है जो कि हमारे पास डायरेक्शन है। इसमें हर नोड जो है दूसरी नोड के साथ कनेक्ट है विद डायरेक्शन। अगर दो नोड्स हैं तो इट्स मीन कि ये बाई डायरेक्शनल है। अगर सिंगल नोड है तो वन वे होगा, यानी आउटगोइंग है या इनकमिंग है तो वो कोई ना कोई एक एरो गिवन है जिससे ये पता चल रहा है कि ये डायरेक्शनल ग्राफ है। दूसरा ग्राफ हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ है, इसमें कोई एरो गिवन नहीं, इट्स मीन के पाथ फ्रॉम एवरी नोड पॉसिबल है। यानी एक तरफ से अगर ये 1 और 2 नोड है, इन 1 से 2 के तरफ पाथ जा रहा है तो 2 से 1 की तरफ भी पाथ अवेलेबल है। तो ये हमारे पास अनडायरेक्टेड और डायरेक्टेड ग्राफ की टाइप्स होती हैं। इसमें ग्राफ्स एप्लीकेशन, many real world systems and problems can be modeled using graph, can be used to represent any collection of objects having some kinds of pairwise relationships. For example, social networks, जितने भी आप आजकल सोशल नेटवर्क की एप्स यूज़ कर रहे हैं जिसमें आपके पास व्हाट्सएप है, ईमो है और बहुत सी हैं जो कि अभी आपके पास अवेलेबल हैं, वो सब इसकी एग्जांपल हो सकते हैं। इसमें फेसबुक, ट्विटर, all of them can be represent an undirected graph. User will be node, and if two user are friends have there an edge connecting them, which is type of edge we will be used now. ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट एक सोशल नेटवर्क की बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो कि ग्राफ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ये ग्राफ एप्लीकेशन इन कंप्यूटर साइंस है जिसमें आपको पता है कि रोड मैप्स के लिए, रोड मैप्स बनाने के लिए जैसे गूगल मैप आप यूज़ करते हैं उसके लिए ग्राफ यूज़ होता है। एज रिप्रेजेंट स्ट्रीट्स एंड वर्टिसेस रिप्रेजेंट क्रॉसिंग्स। इसी तरह कंप्यूटर नेटवर्क है जहाँ पे वर्टिसेस रिप्रेजेंट कंप्यूटर एंड एजेस रिप्रेजेंट नेटवर्क कनेक्शन बिटवीन देम, ठीक है। इसी तरह वर्ल्ड वाइड वेब है जिसमें हमारे पास वेरियस जो हमारे पास वर्टिसेस हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं वेब पेजेस and edges represent hyperlinks। तो ये सब हम यूज़ कर रहे हैं। these are all इनके बैकग्राउंड में ग्राफ जो एप्लीकेशंस का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ हो रहा है। ये सोशल नेटवर्क वर्सेस अनडायरेक्टेड ग्राफ की एग्जांपल हो रही है कि जिसमें देखें आपके पास हर नेम का जो आपके पास नोड है ये आपके पास एक तरह से एक वर्टिसेस है और इसके साथ दरमियान जो लिंक है उसको शो कर रहा है। और यहाँ पे हम जो है उसको जैसे यहाँ पे एक यूज़र जो है वो बहुत से आगे यूज़र के साथ कनेक्ट है। जो फेडेड है मीन कि उनके साथ कनेक्ट नहीं है, और जो हाईलाइटेड हैं जैसे येलो हैं दे आर कनेक्टेड इन दिस नेटवर्क में। जो जैसे हमारा व्हाट्सएप है तो हमारे फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स उसके अंदर क्या हो जाएंगे, वो उसमें हाईलाइट हो जाएंगे
और जो बाकी दुनिया के साथ वहाँ पे भी हम व्हाट्सएप का कनेक्शन उनके साथ भी रख सकते हैं, लेकिन वो हमारा हाईलाइटेड नहीं होगा, लेकिन हम उनके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। दीज आर द एग्जांपल ऑफ सोशल नेटवर्क एज अनडायरेक्ट ग्राफ। ये वर्ल्ड वाइड वेब की एग्जांपल है जिसमें आप देख लेंगे पेज ए बी के साथ कनेक्ट है, बी जो है आगे सी के साथ कनेक्ट है, फिर पेज सी पेज जेड के साथ कनेक्ट है, और इस तरह से ये पूरा हमने एक पूरी एग्जांपल आपके सामने डिफरेंट पेजेस के साथ जो है वो एज के साथ कनेक्ट हैं। ठीक है, तो पेजेस एज ए नोड शुड हैव ए यूनिक यूआरएल होगा। ठीक है, और ये इनके दरमियान जो ये हमारे पास एरो है, ये हमारे पास क्या है, एक लिंक है, और ग्राफ की डेफिनेशन के बताएं ये एक एज है जो कि हर एक के दरमियान अवेलेबल है उसको कनेक्ट करने के लिए। ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन हमने शो करनी है कि टू स्टैंडर्ड वे हैं टू रिप्रेजेंट ग्राफ, जो कि G इज द कॉम्बिनेशन ऑफ V, E एज कलेक्शन ऑफ एडजेसेंट लिस्ट, एजेंसी लिस्ट बना सकते हैं, और एन एडजेसेंट मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो ये दो मेथड हैं हमें ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के, जो कि स्टैंडर्ड हम यूज़ करते हैं। ये ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए। इसमें हमारे पास ये ग्राफ गिवन है, 1 2 3 4 5 नोड्स हैं। ठीक है, और इन 5 नोड्स को हम इस एडजेसेंट लिस्ट से भी शो कर सकते हैं और एडजेसेंट मैट्रिक्स से भी शो कर सकते हैं। एडजेसेंट लिस्ट कैसे है, जैसे लिंक लिस्ट है कि जो हमारा 1 वाला नोड है वो आगे कितने नोड के साथ कनेक्ट है, तो वो देख रहे हैं कि वो हमारा जो है बेसिकली 1 जो है वो 2 के साथ भी कनेक्ट है और 5 के साथ कनेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हमने 2 नोड्स लिखे हैं। इसी तरह से हम देखेंगे कि 2 कितनों के साथ कनेक्ट है, तो कनेक्ट 1 के साथ भी है, 2 1 के साथ भी कनेक्ट है, 5 के साथ भी है, 4 के साथ भी है और 3 के साथ भी है। तो 4 जो है नोड्स के साथ 2 कनेक्ट है, तो ये देख लें 4 वर्टिसेस हमने यहाँ पे इसमें लिंक में शो कर दिए हैं। इसी तरह 3 जो है हम देखेंगे कि 3 जो है वो कितने लिंक्स के साथ कनेक्ट है, तो 3 जो है वो हमारे पास है जस्ट 2 लिंक्स के साथ, 2 और 4 के साथ कनेक्ट है, 2 और 4, तो यहाँ पे हमने 2 और 4 मेंशन कर दिए। इसी तरह से 4 जो है वो कितनों के साथ कनेक्ट है, 4 भी 3 वर्टिसेस के साथ कनेक्ट है, जिसमें 2 3 एंड 5, तो यहाँ पे हमने ये शो कर दिया। इसी तरह 5th जो नोड है वो हमारे पास वो भी 3 एजेस के साथ कनेक्ट है, 3 वर्टिसेस के साथ, तो वो हमने शो कर दिए हैं, वो है 4 1 और 2, जो कि हमारे 5th से जा रहे थे, तो ये हमने सारे इसमें शो कर दिए। इसी चीज़ को हम मैट्रिक्स से भी शो कर सकते हैं। इस ग्राफ के अंदर जो है वो हमारे पास जो है कितने वर्टिसेस हैं, 5 वर्टिसेस, तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिए हैं मैट्रिक्स में कि हमारे पास 5 वर्टिसेस हैं रो कॉलम दोनों में। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 × 5 क्रॉस की जो है वो मैट्रिक्स बन गई, यानी इसके अंदर हमारे पास कितनी लोकेशन है, 25 लोकेशंस है। तो जो नोड जिसके साथ एज रखती है उसको हम जो है वो 1 से शो कर देंगे, और जो नोड जिसके साथ कोई एज नहीं है वो हम 0 कर देंगे। अब यहाँ पे कोई सेल्फ साइकिल इस ग्राफ के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे आप देख लें कि जो 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, यानी डायगोनल के अंदर सारे जीरोस हैं। इट्स मीन कि इसके अंदर कोई भी आपके पास इसमें डायगोनल कोई सेल्फ ग्राफ अवेलेबल नहीं है, इस वजह से हमने इसको इस तरह से शो किया। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि इसमें आप देख लें कि जैसे 2 और 5 हैं, यहाँ पे आपके पास पहला जो 1 है वो 2 और 5 से कनेक्ट है, तो सिर्फ 2 और 5 वाला जो एज है वो ऑन है, बाकी सारे ऑफ है। इसी तरह से 2 वाला जो है वो हमारे पास 4 एजेस रखता है और 4 वर्टिसेस के साथ कनेक्ट है, तो ये देख लें कि इस रो में 5 में से 4 ऑन है और 1 ऑफ है। इसी तरह से 3 वाला जो है वो 2 और 4 के साथ है, तो वही वाला जो 2 और 4 वाला है वर्टिसेस का वही ऑन है, बाकी सारे ऑफ है। इसी तरह 4 हमारे पास 3 के साथ ऑन है, तो ये देख लें हमने सिर्फ 3 ऑन किए हैं, बाकी 2 ऑफ हैं, और 5 हमारे पास फिर 3 के साथ कनेक्ट है, तो ये हमने 3 जो है वो ऑन किए हुए हैं, बाकी ये क्योंकि 5 का 3 के साथ और 5 का 5 के साथ कोई नहीं है, तो वो सब ऑफ है। तो इस तरह से हम इसको एडजेसेंट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। ये मेथड है इसको एडजेसेंट लिस्ट में लिखने का, और ये वाला मेथड एडजेसेंट मैट्रिक्स को
लिखने का है। ये ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है डायरेक्टेड के लिए। इसमें देख लें कि हमारे पास क्या है कि वन नोड जो है वो किससे दो आउटगोइंग है एरोज 4 और 2, तो इसी को हमने यहाँ पे जो है मेंशन किया और मैट्रिक्स में इन्हीं को मैंने ऑन किया है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं देख लूँ 2 को, 2 के अंदर जो है आपके पास सिर्फ एक ही आउटगोइंग है, तो हमने सिर्फ 5 को लिखा है यहाँ पे, और मैट्रिक्स में भी आप देख लेंगे सारे ऑफ हैं 2 के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक जो है वो ऑन है। अब आगे चलते हैं। हमारे पास अगर हम 3 देखें तो 3 हमारे पास जो है अगेन इसके 2 5 और 6 के साथ कनेक्ट है, तो यहाँ पे भी हमने 2 ही नोड्स शो किए हैं, 2 ही, और यहाँ पे आपके पास मैट्रिक्स में भी 5 और 6 ही ऑन है, बाकी सारे 3 के लिए ऑफ हैं। इसी तरह अब 4 के लिए अगर आप देखें तो 4 में सिर्फ एक ही आउटगोइंग है जो कि 2 की तरफ जा रहा है, तो हमने यहाँ पे देख लेंगे 4 के लिए 2 ही मेंशन किया, 5 का भी एक ही हमारे पास 5 का 4 की तरफ एक ही आउटगोइंग है, तो हमने वो मेंशन किया है, और इसी तरह से 6 का जो है वो एक ही है और वो सेल साइकिल है, तो उसके लिए हमने 6 को 6 के साथ ही, तो ये एडजेसेंट लिस्ट मेंटेन होगी, और इसी को देखते हुए हमने इसके एडजेसेंट मैट्रिक्स में भी वही चीज़ मेंशन कर ली। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि अगर इन जगहों पे इन सारे जो एजेस हैं इनके वेट गिवन होते, तो यहाँ मैट्रिक्स में हम उन वेट्स को 1 की बजाय उन वेट्स को मेंशन करते हैं। जैसे 1 और 2 के दरमियान अगर वेट 1 है और 1 और हमारे पास जो ये 4 है इसके दरमियान में अगर हम कर देंगे हमारे पास एज है 2, तो इसमें क्या होगा कि हम 1 से 2 जो है 1 से 2 एज के अंदर बजाय 1 ऑन करने के हम इसका वेट लिख देते हैं 1, जो कि इस वक्त यहाँ पे भी 1 है तो यहाँ पे भी 1 है। लेकिन अगर 1 से 4 हमारे पास जो एज है उसका हमने वेट मेंशन करना है, तो 1 से 4 के लिए एज का वेट हमारे पास 2 है, तो 1 तो ऑन होने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे हमें वो वेट शो करना पड़ता है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हमें पूरे ग्राफ के वेट गिवन होते तो हम मैट्रिक्स में वो 1 की बजाय ऑन होने की बजाय उसके वेट को मेंशन करते कि वो ऑन तो है लेकिन इस वेट के साथ ऑन है। तो ये चीज़ भी आप इसमें डायरेक्शन और अनडायरेक्शन ग्राफ में मेंशन कर सकते हैं। ग्राफ सर्च एल्गोरिथम्स। ग्राफ सर्च एल्गोरिथम्स अब हम स्टार्ट करेंगे। सिस्टमेटिकली सर्च एवरी एज एंड एवरी वर्टिसेस ऑफ ग्राफ। ग्राफ इज ए G vertices of V and E is either directed or undirected। इसमें एप्लीकेशंस में इसमें आ जाता है हमारे पास राउटिंग, सर्चिंग और क्लस्टरिंग के लिए, ठीक है। यहाँ से हम ग्राफ के सर्चिंग एल्गोरिथम्स स्टार्ट करेंगे।